Good morning, student. Today in our second standard, we are going to learn about houses and houses. This is our environmental studies. We are going to learn the fifth chapter of environmental studies. We all need a house to live in. हम सभी को रहने के लिए घर की जरूरत होती है. So what are the materials that are used for construction of a house? What are the different types of houses? And what are the different materials that are used for constructing the house? That all points we are going to learn in this chapter. What are the different rooms in a house? That also we will learn. Okay, now let us see houses and houses. Here they have shown some of the materials, and you have to identify which material is used for the construction of a house. So bricks are used for construction of a house. Here they have shown bricks. Then you can see here is cement or sand that is used for construction of house. Leather or cloth is not used for construction of house. Stone, wood, they are also used for construction of house, but feathers are not used. Paper is also not used for construction of a house. Now let us see what are the different types of houses. But before that, here they have mentioned need for a house. Why do we need a house? Why do we need a house? We need a house to live in. घर की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, जब बाहर बहुत धूप होती है तो हम कहाँ रहने की कोशिश करते हैं? घर में रहने की कोशिश करते हैं. बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है तो हम किसी न किसी बिल्डिंग में शेल्टर लेते हैं या अपने घर में ही रहते हैं. बहुत ठंडी है तो ऐसे टाइम में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम हमारे घर में रहते हैं. सो अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, स्ट्रॉन्ग विंड्स, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा. हमारे घर में हम बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं. हम अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचा सकते हैं, चोरों से बचा सकते हैं, हॉट सन से बचा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड से बचा सकते हैं. मतलब हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स. दैट इज व्हाई वी नीड अ हाउस टू लिव इन. नाउ लेट्स सी. The house we live in protect us from heat, cold, rain, thieves, wild animals, dirt and dust. हाउस हमें किस किस से बचाता है? हमारा घर, हमारा हाउस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, rain, thieves, wild animals, dirt and dust. We feel safe and comfortable in our houses. हमारे घर में हमें कैसे महसूस होता है? कंफर्टेबल महसूस होता है, सेफ महसूस होता है. Then types of houses. On the types of materials used, houses are of two types. घर जो हम बनाते हैं तो घर बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उस हिसाब से घर के या हाउसेस के दो मेन टाइप होते हैं. वन इज द कच्चा हाउस, सेकेंड इज द पक्का हाउस. There are some materials which are used for construction of the house, but those materials are not durable materials. And the house that is constructed by using such type of material is called a kacha house. And a house that is used by that is constructed by using the durable material, that is called as a pakka house. कच्चा हाउस और पक्का हाउस दोनों में क्या फर्क होता है? कच्चा हाउस जो होता है वो टेम्पररी होता है, पक्का हाउस जो होता है वो परमानेंट होता है. ओके, नाउ लेट्स सी कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस. दे आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, लीव्स, बम्बू एंड स्टोन्स. कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं? कच्चा हाउस बनाने के लिए मेनली कच्चे हाउस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. कभी बारिश में या ज़ोर से अगर विंड बहने लगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होते हैं तो ये कच्चा हाउस जो है वो उड़ जाता है. सो व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कच्चा हाउस? सो द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कच्चा हाउस आर मड, स्ट्रॉ, लीव्स, बम्बू एंड स्टोन. मड का यूज़ किया जाता है, सॉइल को भिगोकर उसको नीड करते हैं और उसको यूज़ किया जाता है. स्ट्रॉ, लीव्स,
bamboo and stones. They are found in villages. They are easy to build and cost very less. यहाँ पर दिखाया है कच्चा हाउस कैसे होता है. जनरली कच्चे हाउस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं. Can you see this? This is a kacha house. Okay. From here you should see this is the kacha house. Now kacha houses are temporary houses. Some of the temporary houses are given. कच्चा हाउस जो होता है वो टेम्पररी हाउस होता है. कुछ टेम्पररी हाउसेस के एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हैं. हट्स आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड बम्बू. दे आर वेरी वीक हाउसेस. हट मतलब झोपड़ी. ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिखाई दे रहा. ये वाली ये जो है वो हट है, ये है झोपड़ी. इसको किससे बनाया जाता है? दिस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, लीव्स और ड्राई लीव्स और मड, उसको मिक्स करके उससे ये कच्चा हाउस बनाया जाता है. लेकिन ये जो हट होता है, ये जो झोपड़ी होती है वो बहुत ही टेम्पररी होती है. थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग विंड आया या जोर से बारिश आ गई तो ये गिर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. दे आर वेरी वीक हाउसेस. देन सेकेंड वन इज द igloos. Igloos are houses made up of blocks of ice. इग्लू जो होता है वो किससे बनाया जाता है? इग्लूज स्पेशली नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बनाए जाते हैं, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऐसे रीजन में इग्लूज बनाए जाते हैं. दे आर इट इज़ द हाउस, इग्लू इज़ द हाउस मेड अप ऑफ आइस फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. एस्किमोस लिव इन इग्लूज. एस्किमो इस इग्लू में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ये जो स्नो हाउस है, इस हाउस में रहने वाले लोगों को कहा जाता है एस्किमोस, और इस स्नो हाउस को कहा जाता है इग्लू. IGLOO, that is igloo. Then next is the caravans. Caravans are houses on wheels. They can be moved from one place to another. Caravans जो होते हैं वो हाउस ऑन व्हील्स होता है. मतलब जैसे देखो घर भी है लेकिन जैसे इसको व्हील्स है, तो व्हील्स है तो इसको बुलक्स या फिर हॉर्सेस, कैमल, इसको पुल करके एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर भी लेकर जा सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द कारवांस. सो कारवांस आर हाउसेस ऑन व्हील्स. दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ नेक्स्ट इज टेंट. टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास क्लॉथ. It is used by people who move from place to another place. कुछ लोग होते हैं उनको फिक्स कोई काम नहीं होता, मतलब फिक्स उनकी जॉब नहीं होती है. वो लोग क्या करते हैं, एक प्लेस पर काम करते हैं, वहाँ का काम खत्म हो गया तो दूसरे गांव में चले जाते हैं, फिर तीसरे गांव में, मतलब वो हमेशा घूमते ही रहते हैं. तो ऐसे लोगों के जो घर होते हैं वो होते हैं टेम्पररी हाउस. दैट इज कॉल्ड एज टेंट. इसको टेंट कहा जाता है. टेंट जो है वो कैनवस से बना हुआ होता है. ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ ये कैनवास रखते हैं, जहाँ भी उनको काम होता है वहाँ ये टेंट लगाते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, सोते हैं, और जब वहाँ का काम ख़त्म हो गया तो वहाँ से फिर जब दूसरी जगह पर जाना होता है तो इसको पैक कर देते हैं और अपना घर पूरा पैक करके फिर वहाँ से निकल के दूसरे गांव चले जाते हैं. तो इस तरह से टेंट जो है वो भी एक टेम्पररी हाउस है. दे कैन बी ईजीली पुट अप और पैक्ड अवे. टेंट हाउस जो होते हैं वो हम आसानी से पैक कर सकते हैं, एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर हम उसको ले जा सकते हैं. देन fourth type is, no, fourth we have already learned about huts, igloos, caravans and tents. Now fifth is houseboat. Houseboat भी कौन सा हाउस है? टेम्पररी हाउस है. A houseboat is a house on a boat. We can see them floating in the lakes of Srinagar and backwaters of Kerala. ये जो हाउस बोट होते हैं वो कौन से हाउस बोट है? दे आर द टेम्पररी हाउसेस एंड दे आर मेनली फाउंड इन द लेक्स ऑफ श्रीनगर एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला. केरला का जो बैक वाटर है वहाँ पर, और श्रीनगर में लेक्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं, तो उसमें ये बोट हाउसेस या हाउस बोट जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं. फिर ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दी हुई है यहाँ पर. A traditional igloo can be built in an hour with just a saw and snow spade. जो ट्रेडिशनल igloo है, ये जो igloo है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है?
स्नो और स्पेड। स्पेड मतलब वो ऐसे ये होता है, एक हैंडल होता है सामने पैन जैसे होता है, तो उसको उस दोनों का यूज़ करके, स्नो और वो स्पेड का यूज़ करके बिल्कुल थोड़े 1 घंटे में भी घर बन जाता है, क्योंकि वो होता ही है, उसमें कोई वॉल नहीं बनाना होता, कुछ नहीं, टेम्परेरी हाउस होता है, स्नो हाउस होता है, तो इसीलिए उसको बहुत जल्दी बनाया भी जा सकता है। अंडरस्टैंड? सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस. Which are the different kacha houses? Hut, igloo, caravan, tent and houseboat. These are the different types of kacha houses. Okay. So tomorrow we shall learn about the pakka house or the permanent houses. Okay. So let's stop here.